السلام علیکم ناظرین، پروگرام توانا پاکستان شائقان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود، روشنیوں کے شہر کراچی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ آنکھوں کا ایک پرابلم ہے، پرابلم کہہ سکتے ہیں، بیماری نہیں اسے ہم کہہ سکتے۔ آپ لوگ زیادہ تر جو بیماریوں سے تعارف ہوگا وہ یہی ہوگا کہ کسی کو سفید موتیا ہو گیا ہے، کسی کو کالا موتیا ہو گیا، کسی کی نظر کمزور ہو گئی، بھینگا پن، آنکھوں کا ٹیڑھا پن، تو یہ عام طور پر لوگوں کو جنرلی مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جس موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کم و بیش ہر دوسرے تیسرے پاکستانی کو لاحق ہو، لیکن اس کو ایز اے مرض، اس کو ایز اے پرابلم لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ڈرائی آئی سنڈروم کہہ لیں اس کو، کہ آنکھیں جو ہیں وہ جو اس کی نمی ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور آنکھوں کی بیرونی سطح جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے مختلف مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس دلچسپ اور اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جن ایکسپرٹ کو دعوت دی ہے ڈاکٹر محمد عدنان، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر آف آفتھلمالوجی ہیں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور کنسلٹنٹ آفتھلمالوجسٹ ہیں وی این کیئر آئی کلینک کلفٹن کراچی میں۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو تھینک یو۔ تو پروگرام کے ابتدائیے میں نے بتایا کہ جی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، تو اسکن کی خشکی کا تو لوگوں کو پتہ ہے، آنکھوں کی خشکی شاید لوگوں کو اتنا پتہ نہ ہو۔ تو یہ جو خشکی ہوتی ہے ہماری آنکھوں کی، یہ کوئی منفی اثرات مرتب کرتی ہے اور آنکھیں نم رہنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے؟ دیکھیں بالکل، پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آنکھیں ایک اللہ پاک کی ایک نعمت ہیں، آپ کو پتہ ہے، سب سے بڑی ان کو موائسٹ کرنے کے لیے، ان کو بالکل نم رکھنے کے لیے اللہ پاک نے جو ہے وہ مختلف گدود کریٹ کیے ہیں جس میں سے یہ نمی کریٹ ہوتی ہے۔ پھر اس میں کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جن میں گرم ہوا کا لگنا یا اس طرح سے اسکرین ٹائم یا کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے یہ نیگیٹو امپیکٹس کرتے ہیں اور پھر ڈرائی آئیز ہوتی ہیں۔ تو جو نم آنکھیں ہیں وہ ایک اللہ پاک کی ایک نعمت ہے جس کو ہم اپنے کاموں کی وجہ سے تھوڑا سا ضائع کرتے ہیں۔ یعنی کہ آنکھوں کی خشکی جو ہے وہ ہمارے لیے مسائل کا باعث ہے، بالکل بالکل، لیکن نم آنکھیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب اب میں سہیل وڑائش تھوڑی دیر کے لیے بنتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں نم آنکھیں قدرت کا عطیہ ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ جی دل دکھی ہو، دل ٹوٹا ہو تو آنکھیں نم وہ بھی ہوتی ہے، ہیں۔ ایک وہ سائن بھی ہے، مگر کھلا تضاد نہیں ہے۔ نہیں بالکل۔ تو یہ دیکھیں، نم آنکھیں ہوں مگر آنسو بہتے نہ ہوں، آنسو نہ بہتے ہوں، فرق ہو گیا نا یہ دونوں چیزوں میں، بالکل نمی ہو لیکن بہتی نہ ہو۔ exactly۔ ٹھیک ہے، اچھی بات تو ہے۔ ایکسیسو واٹرنگ جو ہے وہ بھی ایک ڈرائی آئی کا ہی ہے۔ کافی لوگ بولتے ہیں نا کہ آنکھیں خشک ہو گئی ہیں تو دیٹ مینس کہ پانی نہیں آ رہا۔ کافی ڈرائی آئیز میں ایکسٹرا پانی بھی آتا ہے، تو یہ بھی اب ڈاکٹر صاحب اب ذرا علامات بتائیے، کیونکہ جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا نا، لوگ اس کو بیماری سمجھتے نہیں ہوں گے۔ بالکل، کہ یہ کیا مسئلہ ہے یار، مطلب دیکھیں موتیے میں واضح سمٹمز ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں کہ جی پرابلم ہے، اس کو تو شاید لوگ لفٹ ہی نہ کراتے ہیں۔ دیکھیں اصل میں علامات کیا ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو اویئر ہونا چاہیے؟ مین جو سمٹمز ہیں نا وہ ہوتے ہیں ڈرائینس، سوری، مین جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جلن، جیسے آنکھوں میں جلن محسوس ہو، کسی کو کافی لوگوں کو اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ہوا جیسے اے سی کی لگتی ہے تو تنگ کرتی ہے، ایک تو وہ ہو، جلن محسوس ہو، یا ایسے لگے کہ جیسے آنکھ میں اندر کچھ کنکر سی فیلنگ ہے، اس طرح سے کھردری سی محسوس ہو، یا آنکھوں کو دل کرے کہ آنکھوں کو جو ہے رب کرے مسئلیں، تو اس طرح سے یہ مین جو سمٹمز ہیں وہ یہ ہیں۔ اور ایکسیسو پانی آنا بھی ایک سمٹم ہے۔ کافی لوگ بولتے ہیں نا کہ یار آپ بولتے ہو ڈرائی آئی، تو ڈرائی آئی میں تو پانی نہیں آنا چاہیے، مگر یہ ہے کہ وہ ایک ری ایکشن ہوتا ہے آنکھوں کا، اور اس میں سے ایکسٹرا پانی آنا بھی ایک ڈرائی آئی کی علامت ہے۔ اچھا، یہ جو آنکھیں ہم جھپکتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اصل میں یہ لوبریکیشن یا جو نمی مینٹین کرنی ہوتی ہے یہ ہماری آنکھیں جھپکنے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے؟ بالکل، ایک میکینزم ہے، جیسے ہی آپ آنکھ بند کرتے ہیں تو ایک نیگیٹو پریشر کریٹ ہوتا ہے، اس سے آئی کی جو جیسے نمی ہے وہ ایواپوریٹ ہونے سے بچتی بھی ہے اور اسپریڈ بھی ہوتی ہے۔ تو جو بلنک کرنا ہے وہ صرف بلنک کرنا نہیں ہے، بلنک کرنے سے یہ ہے کہ آپ کے آنسو جو ہیں وہ اسپریڈ ہوتے ہیں، ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، تو یہ بھی اچھا، آنکھوں میں جلن، خارش، پانی بہنا، یہ تو اس کی علامات ہو گئی۔ بالکل۔ اور لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ باہر ڈسٹ بڑی تھی، میں دھوئیں سے گزر کر آیا ہوں، شاید اس وجہ سے آنکھیں جو ہیں وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہمارے اس طرح کے ہیں، آپ اس کو پھر رب کرتے ہیں۔ بڑے شہروں میں ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس کراچی، لاہور جیسے شہروں میں کافی برا ہو چکا ہوا ہے، تو وہ تو خیر وجوہات میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کون سی وجوہات ہیں؟ اس کے علاوہ دیکھیں، مین ریزن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اسکرین ٹائم ڈرائی آئیز کی مین وجہ بنتی جا رہی ہے، اور دوسرا اے سی کا زیادہ استعمال۔ اے سی کے وینٹ اگر آپ ڈائریکٹ رکھتے ہیں نا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آنسو جو ہیں ایواپوریٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ دو مین ریزنز ہیں، جیسے جس ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں، جس انوائرمنٹ میں،
उसमें एसी का इस्तेमाल भी मैक्सिमम है और उसमें स्क्रीन का इस्तेमाल भी मैक्सिमम है। तो ये दोनों चीज़ें। तीसरा जो है वो मेन है समर्स, जो गर्मी है। तो गर्मियों में जैसे यहाँ पे आप देखें कि कराची में तकरीबन 90% 70-80% जो है वो आपकी गर्मी है। तो गर्मी के एनवायरनमेंट में भी ड्राइनेस बढ़ती है। तो ये तीन जो मेन एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो टॉलरेबल भी हैं, अगर हम चाहें तो उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर देखिए नहीं, कुछ बीमारियां अब जैसा न्यूरोब्लास्टोमा वगैरह हो गया, आप बेहतर जानते हैं कि वो ऐसा ट्यूमर होता है कि ब्लाइंडनेस हो जाती है, ट्यूमर बन गया, वो तो बिल्कुल इंसान के इख्तियार से बाहर है, बिल्कुल वो अल्लाह ताला की रज़ा है, किसी को हो जाए किसी को ना हो। इसी तरह और बीमारियां हैं। लेकिन ड्राई आइस के केस में इट मीन्स के ज़्यादातर जो है ना ये बैरूनी वामिल हैं। बैरूनी, इसमें ऐसा नहीं है कि कुदरत की तरफ से हमें कोई ऐसा नहीं, प्रॉब्लम कुदरत की दिया तरफ गया। से भी कुछ ऐसी डिजीजेस हैं, जैसे जोड़ों का दर्द होता है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, या स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है। काफ़ी इन ऐसे आंखों के काफ़ी हवाले ऐसे से, dry eyes के हवाले से बात कर रहा सिंड्रोम्स हूं। होते हैं जिससे आंखों की ड्राइनेस होती है। ओके, ठीक है, तो वो भी एक है, यानी मगर कि वो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है, मगर वो 10% है, 15% है। 80-90% आपके ये जो एक्सटर्नल जो हमने जिक्र किए उनकी वजह से ही है, और वो आपके खुद कंट्रोल में है। अगर आप चाहें तो अपनी आंखों की हिफाजत कर सकते हैं। एग्जैक्टली अगर आप 24 करोड़ की पॉपुलेशन लें तो उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एसएलई के पेशेंट तो बहुत कम होंगे कम ना। है, हम तो आम पब्लिक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आम पब्लिक के जो को अगर हम मद्देनजर रखें तो ज़्यादातर वो वजूहात हैं जो उसके अपने इख्तियार में हैं बिल्कुल, कि एग्जैक्टली उसको अपने उससे वो करेक्ट भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने डॉक्टर साहब स्क्रीन टाइम का जिक्र किया, स्क्रीन टाइम को ज़रा मैकेनिज्म बताइए कि किस वजह से हमारा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ता जा रहा है। देखें आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। आपको पता है कि जैसे कोविड आया था, तो कोविड में ये डर तो था कि यार स्प्रेड ना हो, इन्फेक्शन ना हो, काफ़ी कंट्रोल वो चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही थी, मगर उससे इनडायरेक्टली जो चीज़ें हमें मजबूरन करनी पड़ रही थी वर्क फ्रॉम होम में, एजुकेशन फ्रॉम होम उसमें बेसिक यही था कि स्क्रीन, और जैसे ही स्क्रीन बढ़ी तो ना सिर्फ ड्राइनेस बढ़ी, चश्मे के नंबर भी बढ़े। हमने सर्वे किया है। अच्छा, नजरें भी कमजोर हुई। बिल्कुल बिल्कुल, आपका एक्सेसिव स्क्रीन जो है वो आपकी चश्मे के नंबर को भी बढ़ाता है। तो कोविड के बाद तो आपने एक उसमें स्पाइक देखा होगा। बिल्कुल स्पाइक देखा, और यंग एज में, अब जैसे 6 इयर्स का, 7 इयर्स का, 8 इयर्स का कोई है बच्चा, 2 क्लास में पढ़ रहा है, उसको 6 घंटे स्क्रीन यूज़ करनी पड़ रही है सिर्फ स्कूल के लिए, बाकी स्क्रीन अलग। तो उसमें यह है कि फिर डिफरेंसेस नंबर में भी आते हैं। अच्छा, मैं अवाम को ना सर आपके तवज्जुह से ये समझाना चाह रहा हूँ कि स्क्रीन क्या करती है ऐसा कि आंखें खुश्क हो जाती हैं। देखें मल्टीपल चीज़ें, उससे हीट तो नहीं निकलती। एक तो उसमें से यूवी लाइट और लाइट का एक्सपोजर होता है। दूसरा ये है कि आपकी ब्लिंकिंग कम हो जाती है। यस, दैट्स अ टेक्निकल पॉइंट। तो ब्लिंकिंग जो है, नास को मैं बताना चाह रहा था, ब्लिंकिंग वैसे आप अगर नॉर्मल रूटीन में पहले अगर हम रिलेट करें आपकी बात से कि जब आंख झपकते हैं आप तो वो पानी की सतह जो है वो आंख के ऊपर आ गई, सर्कुलेट होता और नम हो गई आंख। बिल्कुल। लेकिन जब आप मुस्तकिल लैपटॉप पे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं बिल्कुल, तो आप कम झपक रहे हैं आंखें। बिल्कुल, इसका मतलब है कि वो नमी उड़ती जा रही है। एग्जैक्टली। वैसे नॉर्मल डॉक्टर साहब एक नॉर्मल बंदे को 1 मिनट में कितना झपकना चाहिए? 10 से 15 दफ़ा करना चाहिए। 10 से 15 दफ़ा, बिल्कुल। और हमने ये नोट किया है कि जो स्क्रीन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका 5 से भी कम हो जाता है पर मिनट की बात कर रहा हूँ। डिजाइनर्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, एग्जैक्टली। तो इनका तो जो नौयत है काम की वो ऐसी है कि हर वक्त इन्होंने फोकस करना होता है। मगर देखें, जब आपको पता होता है कि ये चीज़ जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो आपको फिर अपने हिसाब से उसको, जैसे जंक फूड है, पता है कि जंक फूड अच्छा नहीं है, फिर भी अगर कोई ले रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उसके फिर मेरिट्स और डीमेरिट्स का भी सारी चीज़ें होनी चाहिए। डॉक्टर साहब डायलेमा पता है क्या है कि जंक फूड का तो अब इतनी अवेयरनेस हो गई है कि हर बंदा खाता है, हर बंदा है, और उसकी जो मजम्मत भी हर बंदा कर रहा होता है। एग्जैक्टली। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ना, ये लोगों को पता नहीं है इनफैक्ट। हाँ बिल्कुल, कि ये मैं जो इतनी आंखें नहीं झपक रहा, ये लोगों के लिए नई इन्फॉर्मेशन होगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। कि जनाब आपको 10 से 15 दफ़ा अपनी आंखें झपकनी है नॉर्मली। नहीं, देखें ये एक नेचुरल अमल है। आप अगर नॉर्मली बैठे हुए भी हैं ना, और आप अगर चाहें कि मैं 15 दफ़ा करूं, तो ये आपके बस में नहीं है कि आप खामखा में बार बार ब्लिंक करें। एक ये नेचुरल अमल है, कॉन्शियस एफर्ट नहीं हाँ, है, इससे हमारा दिल धड़क रहा है, हमारे इख्तियार में नहीं है। ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस है, खुद ब खुद आंखें नॉर्मली वो होंगी, और उसमें झपकने का दुरानिया कम होता है, जिसकी वजह से एग्जैक्टली वो जो है वो उसकी वजह बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अब हम देखें कि ड्राई आइज से कौन से सिन्फ और कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा मुतासर होता है? देखें 40+ वाले जो लोग हैं ना, वो ज़्यादातर मुतासर होते हैं, और प्लस जैसे हमने डिस्कस किया कि जिनके स्क्रीन टाइम्स ज़्यादा हैं वो ज़्यादातर मुतासर होते हैं। इसमें तो यंग वंस ज़्यादा तो हैं। यंग वंस आजकल ज़्यादा तो हैं। मोबाइल बच्चे को देखें
चलें सॉफ्टवेयर डेवलपर का तो काम है ना, साइबर सिक्योरिटी वाले का काम है कंप्यूटर पे बैठना, फोकस करना। अब जो हमारा आजकल का जो जेन जी है और टीनेजर हैं तो वो तो ज़्यादातर मोबाइल में ऐसे घुसे होते हैं कि वो बिल्कुल आंखें वो तो बहुत इसके ज़्यादा लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा मॉनिटर करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। अब वक्त आएगा कि लोग खुद समझेंगे काफ़ी चीज़ें होती हैं, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स तो हम करते रहते हैं। अच्छा, आप तो माशाल्लाह माहिर अमराज़ चशम है ना, चूँकि मेरे प्रोग्राम में हर स्पेशलिटी के डॉक्टर साहिबान तशरीफ़ लाते हैं। अब जो हमारे ऑर्थोपेडिक्स के कुलीग हैं, आपको पता है ऑर्थो की टेक्स्ट बुक्स में एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। वो क्या है कि बच्चे ने यूं अपना सर्वाइकल ये जो स्पाइन है exactly. छुपा कर बिल्कुल उसमें घुसा हुआ है मोबाइल के अंदर और उसको देख रहा है, उस तरह वो कर रहा है, तो आपकी ये स्पाइन भी प्रॉब्लम हो गई, आँख का रिलेशन तो आपके साथ आ गया ना, है बिल्कुल ड्राई आइज तो हो ही रही हैं, ये परमानेंटली आपका ये खम पैदा हो रहा है नई जनरेशन में। बिल्कुल। तो इस प्रोग्राम की वसातत से नाज़रीन डॉक्टर अदनान ने जो जिक्र किया, जो जिस तरफ इशारा किया, वो बहुत तशवीशनाक बात है कि अपने जो बच्चे हैं उनके ऊपर नज़र रखें कि स्क्रीन टाइम वो कितना यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करने दें। एक तो आंखें तो ड्राई होंगी, दूसरा उसके साथ साथ ये जो आपकी गर्दन के मोहरे हैं ये मुस्तकिल तौर पर आपके टेढ़े भी हो सकते हैं। एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं इसमें जी, कि जिस पे नज़र काफ़ी कम होती है वो है मेंटल डिसऑर्डर्स। अब देखें जितना स्क्रीन ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, जहनी अमराज भी बढ़ रहे हैं, तो वो उन पे हम फिजिकली तो चलें ड्राई आई स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गए हैं वो चीज़ें, जहनी तौर पे भी बंदा जो है वो इतना बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता, वो चीज़ें तो वो जो ज़ाहरी है वो तो हमें पता चल रही है कि भाई ये नेक स्टिफ हो रहा है या जो ये भी, नफसियाती असरात नो और डाउट जो के बातनी है वो उनको भी हमने जी notice करा। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अब चूँकि मौसम गर्मा की आमद है, कराची में तो खैर ज़्यादातर मौसम गर्मा ही रहता है, बिल्कुल, लेकिन हमारे उधर पंजाब में और उधर नॉर्थ वाली साइड के ऊपर तो अब प्रॉपर गर्मी शुरू हो जाएगी, तो उसमें क्या क्या लोगों को करना चाहिए कि ड्राई आइज से लोग बच सकें? देखें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, ठीक है, आप पानी दिन ज़्यादा में पिएं। पानी ज़्यादा पिएं, उससे भी आपकी जो जो ड्राई आई है वो कम हो जाती है। प्लस आपकी स्क्रीन टाइम का, और धूप में कोशिश करें कि जब भी निकलें तो अम्ब्रेलास लेके निकलें, या कोशिश करें कि जब धूप पीक पे हो जैसे 11 बजे से 3 बजे तक 4 बजे तक, उसमें थोड़ा सा अवॉइड करें बाहर निकलना। प्लस में आप ज़्यादा एसी के, बिल्कुल डायरेक्ट एसी का जो आपका है इंटरेक्शन वो कम हो, ताकि ये है कि आपकी हो। और दूसरा फिर 5 वक्त जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें आप वज़ू करते हैं तो होता है, automatically तो वो- वज़ू में ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, तो वो एक हमें तोहफा दिया गया है समझ लें अल्लाह पाक की तरफ से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पेशेंट को एहसास ही नहीं है कि उसको ड्राई आइज का आर्जा लाक है, वो क्या करता है? हमारे यहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन बहुत कॉमन है, आपके पास भी पेशेंट आते होंगे, पहले ही वो ड्रॉप्स लेकर आते होंगे, डॉक्टर साहब ये तो मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ पहले, होता है ना इस तरह? बिल्कुल ऐसे ही। सेल्फ मेडिकेशन, तो वो इसको एक एंटिटी समझते ही नहीं है कि ड्राई आइज कोई मसला है। वो कहते हैं अच्छा रगड़ पड़ रही है, अच्छा चलो जाओ मेडिकल स्टोर से आंखों के कोई भी ड्रॉप्स डाल लें। ये ट्रेंड कितना खतरनाक हो सकता है? बहुत खतरनाक है। और दूसरा ये है कि जब देखें आई ड्रॉप्स तो ड्रॉप्स हैं, जब आप किसी भी मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं, बोलते हैं आंखें लाल हो रही हैं, तो वो क्या करता है, वो आपको कोई ना कोई स्टेरॉइड दे देता है। एग्जैक्टली। स्टेरॉइड से क्या होता है कि आपकी लालपन तो बेहतर हो जाता है, मगर वो ड्राइनेस को और मज़ीद बढ़ा देगा। फिर आप और मज़ीद रब करेंगे और मज़ीद ड्राई होगी, फिर आपका स्टेरॉइड का एक समझ लें कि आपकी हैबिट बन जाएगी। और वो स्टेरॉइड आपको पता है कि कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके, काला पानी है और बाकी उसके गुर्दों के ऊपर भी तो बुरे सेल्फ असरात हैं मेडिकेशंस जो हैं वो वैसे भी किसी भी फील्ड में जो है वो अलाउड नहीं है, तो एहतियात करना चाहिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म इसकी कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर साहब, मुस्तकिल तौर पर एक बंदे का पेशा भी इस तरह का है कि बहुत कंप्यूटर यूज़ करना पड़ता है, तो इसकी जो आपके हवाले से, आपकी स्पेशलिटी के हवाले से क्या कॉम्प्लिकेशन? देखें कॉम्प्लिकेशंस में मेन कॉम्प्लिकेशन ये है कि आँख की जो आगे की पुतली है जैसे कॉर्निया है, उस पर आपके स्क्रैचेस आ सकते हैं, उसमें एरोजन्स आ सकती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता से विजन भी मुतासर कर सकता है और बिनाई चली भी जा सकती है। सिर्फ ये नहीं है कि आपकी ड्राई हैं आईज़ और आपकी खुश्की हो रही है और जलन हो रही है, दैट्स इट। ये तो अर्ली सिम्टम्स हैं, अगर आप इन पे ध्यान नहीं देंगे तो अल्टीमेटली आपकी विजन भी चली जा सकती है, बिनाई भी आपकी मुतासर हो सकती तो इसके लिए टाइमली इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है फिर? है। बिल्कुल। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस तो खैर इसका कोई होता है डॉक्टर साहब कि इसमें आप लेबल different- कर सकें इसी पेशेंट को कि जनाब ये ड्राई आइज का पेशेंट है? बिल्कुल, इसमें ग्रेडिंग होती है डिफरेंट। आजकल तो जैसे शिरमर टेस्ट है या ब्रेकअप टाइम है, काफ़ी इस तरह से हमें पता चलता है कि इसके आंसू कितनी क्वांटिटी में हैं।
फिर उस हिसाब से हम उसको मेडिकेशन देते हैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, या कोई जेल फॉर्म में हम उनको ड्रॉप्स देते हैं, तो वो हम चेक करके और फिर उनको हम उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मेडिकेशंस देते हैं। अच्छा, इसमें जो ज़्यादातर वजूहत हैं वो अब तक की जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो तो वो हैं जो हमारे लाइफ स्टाइल या तर्ज ज़िंदगी से बिल्कुल, मुतल्लिक है। बिल्कुल। इसमें कोई ऐसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी हो सकती है आँख में कि जिसमें आँख में आंसू बनने का अमल जो है वो सुस्त हो जाए या आंखें खुश्क हो जाएं? नहीं, वो तो होता है, वो होता है वो? हाँ, बिल्कुल होता है। केराटिनाइजेशन हो जाती है, जिसमें ये है कि आपके आंसू जो है वो रुकते ही नहीं है। आपके बनते तो हैं मगर वो एवापोरेट हो जाते हैं, या आपके जो है तो वो डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टिगेशंस, आप इन्वेस्टिगेट करते हैं किस किस्म की ड्राइनेस है, उस हिसाब से फिर आप उसको मेडिकेशन देते हैं। इसका मतलब है कि कुछ केसेस में आँख के अंदर प्रॉब्लम भी हो सकता है जिसकी वजह से आँखें ड्राई आइज हो रही हैं। अच्छा, आपके पास एक पेशेंट है जिसको कोई वैसे आँख में मसला नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जी मुझे ड्राई आइज, तो इसमें फिर आप कोई दवाई देते हैं या कुछ आर्टिफिशियल टीयर्स का भी हमने नाम सुना है, बिल्कुल। तो वो किस तरह हेल्प आउट करते हैं पेशेंट? देखिए, आर्टिफिशियल टीयर्स जो है ना, वो आंखों के जैसे ये आंसू हैं उनको स्टेबलाइज भी करते हैं, उनको एवापोरेट करने से रोकते भी हैं, और वो फिर उनका फिर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब आप देते हैं तो वो डिपेंड, हम सीवियरिटी को देखते हुए फिर हम उनको एडवाइस करते हैं। यानी कि वो आँखों में जो आंसुओं की अफादियत है उसको बढ़ा देते हैं, बिल्कुल, और एक किस्म का वो आंसुओं की तरह ही काम कर रहे बिल्कुल। होते हैं। वो टेम्पररी बेसिस पे करते हैं, जब तक आप अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें तब तक वो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक 20-20-20 का एक रूल होता है ड्राई आइज को से प्रिवेंट बचने का, वो क्या होता है? मैं चाहता हूँ कि वो प्रैक्टिकल चीज़ है और अच्छा, ये नाज़रीन जो देखें, है ये बहुत उससे भी अवेयर हों कि वो क्या चीज़ है। बिल्कुल देखें, ये बहुत ज़रूरी है, और इस पे अगर अमल करते हैं तो 50% से 60% चांसेस हैं कि आपको ड्राई आइज़ ना हो, क्योंकि आजकल के दौर में आपको पता है कि स्क्रीन जो है वो एक मजबूरी भी बन गई है कि आप उस स्क्रीन को बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते। आपका चाहे आईपैड हो, ज़िंदगी का चाहे हिस्सा लैपटॉप बन गया हुआ है हो, अनफॉर्चुनेटली। तो उसमें यह है कि आप 20 मिनट्स तक स्क्रीन इस्तेमाल करें, फिर 20 सेकंड्स तक 20 फीट दूर देखें। तो दूर देखने से क्या होगा? दूर देखने से ये होगा कि आपका फोकस जो है वो बेहतर होगा और आपकी ड्राइनेस कम होगी, मसल्स भी क्योंकि आप ब्लिंक करेंगे। बिल्कुल ब्लिंक करेंगे, आपका जो अकोमोडेशन है वो रिलैक्स होगा, आपकी आंखें थकेंगी नहीं, और आप ब्लिंक करेंगे तो आपकी ड्राइनेस बेहतर होगी। तो 20-20-20 बहुत अच्छा रूल है। ये तो बड़ा ज़बरदस्त और आसान सा, देखें इसमें कोई खर्चा नहीं है बिल्कुल, और एवरीबॉडी कैन डू इट। बिल्कुल जी नाज़रीन, जिस तरह डॉक्टर अदनान ने 20-20-20 का रूल बताया ड्राई आइज से बचने के लिए, बड़ा खूबसूरत एक असूल है जो कि मुफ्त है कि आप 20 मिनट, अगर आपका काम की नोयत इस तरह की है कि आपको कंप्यूटर या मोबाइल पर बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, तो 20 मिनट तक काम करें घड़ी के ऊपर देखकर। 20 मिनट बाद आप 20 सेकंड के लिए 20 फुट किसी दूर चीज़ के ऊपर फोकस करें, ताकि आपकी आंखों को थोड़ा सा रेस्ट भी मिले और वो जो आपका पलकें झपकने का अमल है वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो और आंखों के अंदर नमी वापस आ जाए। तो इस रूल पे मेरा ख्याल है कि अगर अमल किया जाए तो काफ़ी हद तक इसमें बेहतरी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियों में जो सन ग्लासेज हैं इसकी भी इफादियत पे थोड़ा सा जाते जाते इसमें ऐड करते जाइए कि सन ग्लासेस तो वैसे ही कितना इंपॉर्टेंट है। यूवी रेज तो हैं ही हैं, बिल्कुल, लेकिन ड्राई आइज में भी हेल्पफुल होती हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि उसमें आपकी इवापोरेशन कम होती है, आपका जो है एक्सपोयर, सन एक्सपोयर कम होता है, तो आपकी पिगमेंटेशन कम होती है और ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है, आपका कैटरेक्ट फॉर्मेशन कम हो जाता है। अच्छा, मोतिया के भी असर पड़ता है? बिल्कुल, जैसे जिस तरह से ज़्यादा धूप में जो लोग चलते हैं उनमें एक जैसे टेरिजम है, एक गोश्त आ जाता है, तो वो भी ज़्यादा हो जाता है, कैटरेक्ट की फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो जाती है, जो ज़्यादातर धूप में निकलते हैं, तो उनकी लेंस में भी चेंजेस आती हैं। और एयर भी बहुत गर्म हो जाती है सड़कों के ऊपर ना, बिल्कुल, तो वो जो थ्रस्ट एयर का आ रहा होता है ना आंखों के ऊपर, अगर वो भी हेलमेट या पहना हो, अगर बाइक वाला है या गाड़ी में अगर वो पहना हो, तो थोड़ा सा वो भी डायरेक्ट हीट से भी आपको बचा रहा है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि आप रिकमेंड करते हैं कि गर्मियों में बिल्कुल चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज का जो मौजू बहुत ही दिलचस्प था, लोगों के लिए शायद नई टर्म्स होंगी ड्राई आइज, तो इस हवाले से आप टेक होम मैसेज हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे प्लीज़? देखें जी, ड्राई आइज एक तो आपको पता है कि आजकल के दौर में कॉमन है मगर ट्रीटेबल डिजीज़ है, और आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड किस तरह से कर सकते हैं? जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 20-20-20 रूल एक अप्लाई करें। उसके अलावा जो आपकी स्क्रीन टाइम है, कोशिश करेंगे स्क्रीन टाइम को जितना लिमिट कर सकते हैं उतना लिमिट करें, और कोशिश करें कि जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स हैं, जैसे धूप है या ज़्यादा रबिंग है, उससे थोड़ा सा अवॉइड करें, तो ये चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से बेहतर होंगी। थैंक यू।
آخر میں ناظرین میں ڈاکٹر محمد عدنان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ کراچی کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسرا جگہ پہنچنا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ سڑکیں بھی نہیں بن رہی ہیں، ٹریفک کے بھی معاملات ہیں. تو ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے ہمارے اسٹوڈیو تک آنے میں آئی ایم شیور کہ کافی زیادہ جسے کہتے ہیں وہ پرابلم بھی ہوئی ہوگی. اس لیے میں آپ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں ڈاکٹر عدنان، اور آپ نے اتنی اچھی پریکٹیکل اور مفید معلومات اتنے سادہ اور عام فہم الفاظ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کی. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو توانا پاکستان شائگان کے ساتھ کی آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.